Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. हाईकोर्ट के फैसले के बाद जश्न में डूबे 2017 के प्राथमिक शिक्षक। सिलीगुड़ी में पहाड़ पर समतल क्षेत्रों के ड्राइवरों से दुर्व्यवहार का आरोप। मुख्यमंत्री के विकास पंचाली के बाद उत्तर बंगाल के विधायकों ने जताया रोष। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जश्न में डूबे 2017 के प्राथमिक शिक्षक। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पूर्व के आदेश को खारिज कर 2017 के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखते ही बागा जतीन पार्क में उत्सव का माहौल बन गया, जब 2017 की प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति बहाल होने की खुशी में ढोल नगाड़ों और मिठाई के साथ जश्न बनाया। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए 2023 के 22 मई को सभी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला डिवीजन बेंच में गया, लेकिन डिवीजन बेंच के हालिया फैसले के बाद सभी नियुक्ति बेहाल हो गई। शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर नारे लगाते हुए और मिठाई बांटते हुए दिन भर उत्सव बनाया और शिक्षक खुशी में झूम उठे। ধরে উৎকণ্ঠা, মানসিক নির্যাতন সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা চলছিলাম। ও ভালো বলেছে, আমাদের জীবন সত্যিই বেরঙিন হয়েছিল, সেটা আজকে নতুন করে রঙিন হলো। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই যে 2.5 বছরের লড়াইটা, এই যে জিতলেন আজ, কি বলবেন, কতটা বিশ্বাস ছিল? নিজেদের উপরে প্রথম থেকেই বিশ্বাস ছিল। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে 2023-এর 12ই মে আমরা টিভির থেকে জানতে পারি আমাদের চাকরিটা বাতিল। আমাদের চাকরি নিয়ে যে কোনো কেস চলছে এটাই আমাদের কাছে জানা ছিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনের আমাদের কোনো জায়গা ছিল না। এবার যেই অভিযোগ ছিল যে অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা হয়নি, সরাসরি মিথ্যা কথা। আমাদের কাছে প্রমাণ ছিল, সব ছিল। ডিভিশন বেঞ্চে সেই প্রমাণ, সুপ্রিম কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চে আমরা সুযোগ পেয়েছি সেগুলো রাখার। আমাদের মানে শ্রদ্ধেয় প্রতিটা দল, আমাদের 32,000-এর থেকে প্রচুর আইনজীবী দাঁড়িয়েছিলেন, প্রত্যেককে সভূমি মানে আভূমি প্রণাম। তারা না থাকলে আজকে আমরা এখানটায় থাকতে পারতাম না। আমাদের যারা মানে স্টেট অ্যাডমিন ছিল আমাদের দলের হয়ে, প্রত্যেকে ভীষণ লড়াই করেছে সবার। सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पहाड़ पर समतल क्षेत्रों के ड्राइवरों से दुर्व्यवहार का आरोप। सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेशनलिस्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने पहाड़ पर समतल क्षेत्रों के ड्राइवरों से दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। आरोपों के अनुसार ऑल बंगाल परमिट होने के बावजूद ड्राइवरों को यात्रियों के साथ पहाड़ में किराया लेने या प्रमुख साइट्स पर गाड़ी चलाने नहीं दिया जा रहा है। विरोध जताने पर मारपीट, अपमान और पार्किंग की जगह न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर उत्पीड़न रोकने और ड्राइवरों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। 27 তারিখে ছোট্ট একটা ঘটনা, পার্কিংকে নিয়ে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা ঘটছিল। তো সেটা আমরা বসে মিটমাট করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই কিছু ব্যক্তি বা কিছু স্বার্থ বেশি লোক এই জিনিসটাকে অন্যভাবে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা বসলো না, সেটা ওই ঘটনার এগেনস্টে ওরা এসে আমাদের এনজিপি পুলিশ স্টেশনে আর জিডিও করে গেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ড্রাইভারটা অ্যারেস্টও হয়েছে এবং অ্যাজ পার ল যেটা হওয়ার সেটা হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা এমনভাবে ধমকি দিচ্ছে যে আমাদের নিচের চালকরা উপরে যেতে ভয় পাচ্ছে। বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে যে সাইট সিন করতে দিব না, ভায়া মিরিক যেতে দিব না, শিটং যেতে দিব না। বিভিন্নভাবে ওরা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কোনো দরকার নেই এসব বলা। যেটা আগে ছিল সেই জিনিসটা হলে পরে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু ওরা একটা ভয়ের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলছে পাহাড়ে, যেটা আমরা চাই না। আমরা চাই পাহাড়ের আর সমতলের ঐক্য যেন বজায় থাকে। তো পাহাড়ের যারা ড্রাইভার, নিচের তারা ড্রাইভার, জাত তো একই, আমরা ড্রাইভারই তো আমরা। তো আমরা চাই যে সবাই মিলেমিশে যেন কাজ করতে পারি। এই বার্তাটা দেওয়ার জন্য আমরা টোটাল তরাই, মানে শিলিগুড়ি তরাই যত অঞ্চলের যত ইউনিয়ন, যত আমাদের ট্রান্সপোর্টের সঙ্গে জড়িত যেসব অ্যাসোসিয়েশন, আমরা এক হয়েছি এই বার্তার যেন সমষ্টিভাবে আপনাদের মাধ্যমে ওদের দিতে পারি যে আমরা এক আছি। ওরা যেন ভুল না বোঝে, আমরা যে কোনো আলোচনার টেবিলে বসে আলোচনা করার জন্য রাজি আছি।
27 তারিখের পর থেকে কি পর্যটনের কোনো রকম সমস্যা? मुख्यमंत्री की विकास पंचाली के बाद उत्तर बंगाल के विधायकों ने जताया रोष। मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के 15 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाकर विकास पंचाली जारी किए जाने के बाद उत्तर बंगाल के कई विधायकों में नाराजगी देखी गई है। विधायकों का आरोप है कि विकास की इस रिपोर्ट में उत्तर बंगाल की उपेक्षा की गई है। उनका कहना है कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या और परियोजना पंचाली में पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाई गई है, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों में असंतोष बढ़ रहा है। विधायकों ने साफ कहा है कि उत्तर बंगाल को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए और मुख्यमंत्री की रिपोर्ट में जिलेवार संतुलित प्रस्तुति अपेक्षित थी। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যা ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা আশা রাখি উনি বিধানসভায় আসেন না বলে বিধানসভার প্রশ্ন উত্তর পর্বে ওনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। আচ্ছা ভাবুন তো, আমরা তো এইখানে যারা বসে আছি সবাই আমরা এই 2.5 কোটি মানুষের সুখ দুঃখের কথা আপনারা ক্যামেরার লেন্সের ওপাশ থেকে ক্যামেরা দিয়ে দেখান, আমরা বিধানসভার ভেতরে বিরোধী দল হিসাবে তুলে ধরি। একটা নিউরো সার্জন নেই 2.5 কোটি মানুষের জন্য। কুচবিহার থেকে রায়গঞ্জ থেকে একটা পেশেন্ট যার কোনো সার্জারি প্রয়োজন হয়েছে, হেমারেজ হয়েছে মস্তিষ্কে, তাকে নিয়ে যেতে যেতে কলকাতা তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার 75 বছর পর উত্তরবঙ্গে এটা আমাদের প্রাপ্য। বিধানসভায় বলতে বলতে মুখে থুতু উঠে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তো উত্তর দেন না, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করেছি, ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক লড়াই করি, কিন্তু গিয়ে আমরা বললাম যে দিদি আপনি দয়া করে আমার একটা নিউরো সার্জন দিন। এনবিএমসি তে একটা নিউরো সার্জন পাঠালো, 3 মাসের মধ্যে সেই নিউরো সার্জনকে যতদূর সম্ভব আসানসোলে না কোথায় বদলি করে দিল। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बिहार की उड़ान सेवा बंद, राजनीतिक विवाद तेज। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ बिहार की उड़ान सेवा 26 जनवरी के बाद बंद होने जा रही है, क्योंकि एयरलाइन कंपनी ने तकनीकी और परिचालन समस्याओं का हवाला देते हुए 3 साल के अनुबंध के नवीनीकरण से इनकार कर दिया है। इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के दौरान उड़ान सेवा बहाल करने की मांग उठाई जाएगी। व्यापारी संघ ने चिंता जताई है कि पहले से सीमांत और परिवहन चुनौतियों से जूझ रहे कुछ बिहार पर इस फैसले का उद्योग व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। নিশ্চিতভাবে এটা ভীষণ দুঃখজনক খবর। আমার কাছে তো অবশ্যই দুঃখজনক। আমার মনে হয় কুচবিহারের যারা সাধারণ মানুষ, যারা কুচবিহারের প্রতি যাদের অগাধ ভালোবাসা, তাদের কাছে নিশ্চিতভাবে এটা দুঃখের যে গত প্রায় 3 বছর আগে যে বিমান পরিষেবা কুচবিহার থেকে চালু হয়েছিল 2023 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি, সেই বিমান পরিষেবা আপনারা জানেন যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কন্টিনিউ এতদিন পর্যন্ত সেই পরিষেবা কুচবিহারের সাধারণ মানুষ পেয়ে এসেছিল এবং এখনো পাচ্ছেন। কিন্তু আমি সংবাদ মাধ্যমে এবং আমার বিশেষ কয়েকটি মাধ্যমে আমি সূত্রে খবর পেলাম যে 31শে জানুয়ারির পর সেই বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে কেন এই পরিষেবা বন্ধ হচ্ছে? যে উড়ান পরিষেবা আমি যখন, আপনারা জানেন যে কুচবিহারের সাংসদ ছিলাম এবং আমার যখন সরকারি ক্ষমতা ছিল সেই সময় আমি চালু করেছিলাম, এবং আমি যখন চালু করছিলাম সেই সময় আপনারা বিভিন্ন নিউজগুলো দেখবেন, যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন আপনারা তারা দেখবেন যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে একেবারে বহু নেতা, বহু মন্ত্রীরা তারা দাবি করছিল তারা চালু করছে। আজকে যখন বন্ধ হচ্ছে তারা কোথায়? যদি চালু করবার দাবি তারা নিতে পারে, তাহলে বন্ধ যখন হচ্ছে সেই বন্ধ হওয়ার কৃতিত্ব তাদের নেওয়া উচিত। আজকে অত্যন্ত দুঃখের, আমি কুচবিহারের মানুষের স্বপ্নকে কিছুটা মাত্র হয়তো সফল করবার চেষ্টা করেছিলাম এবং যে কারণে বিমান পরিষেবা কুচবিহারের শহরে, রাজার শহরে বিমান পরিষেবা চালু করেছিলাম।
सिलीगुड़ी नगर निगम का बड़ा कदम, वार्ड 15 के निगमपल्ली में कवर स्लैब निर्माण व सौंदर्यीकरण शुरू। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से वार्ड संख्या 15 के निगमपल्ली क्षेत्र में लॉयर स्पोर्टिंग क्लब के पीछे कवर स्लैब निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्य को नगर निगम के वार्षिक विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीकृति मिली है। जारी किए गए सूचना बैनर में बताया गया है कि परियोजना आदेश संख्या 138 SMC PWD B2 W15 2022 से 2023 के तहत ये काम कराया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस निर्माण कार्य से आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता, सुरक्षा और सौंदर्य में बढ़ोतरी होगी। नगर निगम की ओर से ये भी कहा गया है कि शहर की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कई विकास कार्य अलग अलग वार्डों में जारी है। उद्यान हम लोग बनाया, एक हाइडेन था और हाइडेन नहीं तो फुलेश्वरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो भी हो, लेकिन डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 15 के काउंसिलर और वार्ड नंबर 21 का काउंसिलर दोनों मिलके एक बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम, एक प्रपोजल लेके आया कॉर्पोरेशन के लगभग 2 साल पहले, और इसके आधार में हम लोग काम किया। अभी 71 लाख का काम कंप्लीट हुआ, 21 लाख का काम चल रहा है। बहुत अच्छा स्टेज बना, इधर में साउंड सिस्टम, लाइट, इको फ्रेंडली एरिया बना और ड्रेन के ऊपर एक बहुत अच्छा एक पार्क हम लोग बनाया, अच्छा स्टेज, और उसको बाद जो क्लब है उसके साथ ये लास्ट एंडिंग पॉइंट जोड़ा जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव रोड भी हो जाएगा उधर से वार्ड नंबर 21 में जाने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम ये है और आने वाले दिन में इसको हम लोग और भी थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। सर, ऐसा काम और भी वार्ड में होगा? बहुत सारे वार्ड में हो रहा है, सारे जगह में ऐसा स्टेचेस नहीं है, लेकिन दूसरा टाइप का स्टेचेस है, उधर में काम हो रहा है। देखिए, बहुत सारे कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम होता है, लेकिन एरिया का अच्छा बनाना, एरिया का एनवायरनमेंट और उसको कल्चरल एक्टिविटीज वार्ड का जो माहौल उसको नया ढंग से करना, ये हमारा टारगेट है, प्रोग्राम है। हम लोग कर रहा है, बहुत सारे काम किया, बहुत सारे काम अभी भी करना है, लेकिन हम लोग करेंगे। जन्म लेते ही नवजात को मिट्टी में दबाने की कोशिश, जलपाईगुड़ी में ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। जलपाईगुड़ी के राजाडांगा पंचायत क्षेत्र में जन्म लेते ही एक नवजात को मिट्टी में दबाने की कोशिश की गई, जिसने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया। आरोप है कि रेजिना बेगम ने अपने स्वस्थ शिशु को जमीन में दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने देख लिया और वो भाग गई। गाँव वालों के अनुसार महिला लगातार गर्भवती होने से इनकार करती रही और प्रेगनेंसी टेस्ट में भी धोखा देने की कोशिश की थी। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का मामला दर्ज किया है और कहा है कि ऐसी अमानवीयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय लोग का आरोप है कि कठोर और मिसाल बनाने वाली सजा की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। বাড়ি থেকে আমি যখন বাড়ি থেকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম জমি বাড়ি, তো তখন মানে আমার চোখে পড়লো এমনটা যে কিছু একটা রাখতেছে এখানে। তো তখন গিয়ে দেখতেছে এরকম বাচ্চারা, মনে হচ্ছে যে মানে নিজে মারছে, মারার পরে পুঁতে রাখতেছে। কে ওর স্বামী? কি ও মানে স্ত্রী? কি না, ওর বউ, আচ্ছা, বাচ্চাটার মা। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना,
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজে সশ্রীকাল সশ্রীকাল ব্রাজি আমার শোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব कैसे काय আমার শোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে হাজারিকা বাবু কি খবর ভাল খবর স্যার আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? CAA के तहत आवेदन कर पश्चिम बंगाल में कई लोग बने भारतीय नागरिक, मिला नागरिकता प्रमाण पत्र। नदिया जिले के ताहिरपुर में कई निवासियों को CAA के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अतिरिक्त भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिल गया है, जिससे परिवारों में खुशी का माहौल बन गया। प्रफुल्ल विश्वास और अनादि मजूमदार जैसे लोग जो 10 को पहले बांग्लादेश से आए थे, हियरिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने पर भारतीय नागरिक घोषित किए गए। घटना के बाद बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रम फैला रही है और लोगों से बिना डर CAA में आवेदन करने की अपील की है, जबकि नागरिकता प्राप्त परिवारों ने भी दूसरों को आवेदन करने की सलाह दी है। দাদা কত বছর আগে ভারতবর্ষে এসেছেন? আমি 90 সালে। আচ্ছা কিভাবে এসেছিলেন? ওই বর্ডার দিয়ে চলে আসছি, ওই অত্যাচার বাংলাদেশে অত্যাচার করছিল বলে আমরা চলে আসছি, ওই বর্ডার দিয়ে চলে আসছি। আচ্ছা কি মূলত কি ওখানে অত্যাচারের জন্যই? হ্যাঁ, আমরা কারা অত্যাচার করতো? অত্যাচার মুসলমানরা অত্যাচার করছিল, ওই জন্য ওই জায়গায় আমরা চলে আসি। আচ্ছা কতদিন আগে আবেদন করেছিলেন? আর আবেদন করছি আমরা, ধরো নরেন্দ্র মোদী যে সময় যে বিলটা পাস 24 সালে যে বিলটা পাস করায়, সেই সময় আমি পরপরই CAA আবেদন করি। কোথায় আবেদন করেছিলেন? আবেদন করছিলাম কৃষ্ণনগর অনলাইনে। আচ্ছা এই CAA ক্যাম্পে? CAA ক্যাম্পে। আচ্ছা তারপরে ওখানে হেয়ারিং হলো? হেয়ারিং হলো, আমরা মোবাইলে SMS আসছিল, সেই তারিখ মতো আমরা চলে গেলাম ওই কৃষ্ণনগর। আচ্ছা যে ওই আমাকে সব কিছু জিজ্ঞাসা করলো, আমি সব কিছু বলে দিলাম, আমার এই ঘটনা, এই জায়গাতে আসছি, অমুক জায়গাতে আসছি। তাহলে এখন এই যে নাগরিকত্ব পেলেন কতটা খুশি? আমার খুব খুশি, খুব খুশি। আচ্ছা কি বলবেন? আমাকে প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানাই, আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানাই। তাহলে যারা ভয় পাচ্ছে বলছে পাবে না নাগরিকত্ব। वक्फ कानून के विरोध में AIMIM का प्रदर्शन, बाद में राइटर्स बिल्डिंग में डेपुटेशन। वक्फ कानून के विरोध में AIMIM संगठन की ओर से धर्मतला स्थित टीपू सुल्तान मस्जिद के पास आज एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। संगठन के कार्यकर्ता वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वक्फ कानून में प्रस्तावित
बदलाव मुस्लिम समाज के अधिकारों के खिलाफ है। AIMIM कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो इस बिल के विरोध में राइटर्स बिल्डिंग स्थित अल्पसंख्यक विभाग में जाकर एक डेपुटेशन भी सौंपेंगे। बाघ के आतंक से दहशत में लोग, प्रशासन की माइकिंग और जाल बिछाने की कार्रवाई जारी। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा के उपेंद्र नगर में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है और लोग शाम होते ही घरों में बंद होते जा रहे हैं। वन विभाग अब तक 2 पिंजरे लगाने के बावजूद बाघ को पकड़ नहीं पाए हैं और अब अतिरिक्त पिंजरे, ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद से खोज अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। बाघ के लगातार पकड़ से बाहर रहने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। ठंडी रात में बिसनाक मैनागुड़ी के आमगुड़ी बाजार में 2 दुकानें राख, कई प्रभावित। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी ब्लॉक के आमगुड़ी बाजार में तड़के लगी भीषणाग से ठंडी रात में अफरा तफरी मच गई। अचानक उठी आग की लपटें ने देखते ही देखते 2 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक कर दी और कई अन्य दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और दमकल की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस व दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। আমি তো রাতে 12টা দিকে কাজ করে বাড়িতে গেলাম, তখন মানে সব বন্ধ করে গল্পটা করে বাড়ি 1টা দিকে গেলাম। তখন তো কিছুই ছিল না। 12টা পর আমি দোকান অর্ডারই মাল ছিল, কাজ টাজ করে বাড়ি গেলাম। কি করে আগুনটা লাগলো ওটা তো আমি দেখতে পাইনি। এর আগে কমপ্লেন ছিল বা আমার দরজার সামনে কেউ আগুন লাগাইছিল, তখন আমি নিয়ে থানায় দাঁড়িয়ে দেওয়া ছিল। আশেপাশে কটা দোকান আছে এখানে? আশেপাশে 6টা দোকান আছে, 7টা দোকান আছে। এখন বর্তমানে কটা দোকান পুড়ে গেছে? বর্তমানে 2টা দোকান পুড়ে গেছে আর পাশের দোকান বাটাম দোকান পুড়ে গেছে, 6টা দোকানের। BSF की बड़ी कार्रवाई, भारत बांग्लादेश सीमा पर करोड़ों के सोने के साथ कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। नदिया जिले में BSF की 32वीं बटालियन ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए BOP टूंगी क्षेत्र में 20 सोने की ईंटों के साथ एक कुख्यात बांग्लादेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। घटना उस समय हुई जब 2 तस्कर झील के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक पकड़ा गया जबकि दूसरा व्यक्ति अंधेरे में भाग गया। गिरफ्तार आरोपी ने सोना तस्करी में अपनी संलिप्तता कबूल की और BSF ने बरामद सोने के साथ उसे आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को सौंप दिया। नेहाटी स्टेट जनरल अस्पताल में बुधवार को मां कैंटीन का शुभारंभ किया गया। इस नई सुविधा के माध्यम से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अब मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इस कैंटीन का उद्घाटन नेहाटी नगर पालिका के चेयरमैन अशोक चट्टोपाध्याय ने किया। नगर पालिका प्रमुख अशोक चट्टोपाध्याय ने बताया कि प्रारंभिक चरित्र में प्रतिदिन 50 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और आगे मांग आवश्यकता होने के अनुसार इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। इस पहल से अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। মানে বাড়তি হলো বলা যেতে পারে। বাংলার মানবিক মুখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিরন্ন মানুষের মুখে সর্বস্তরের স্বল্প পয়সায় অন্ন তুলে দিতে চান, সেই প্রকল্প হচ্ছে মা ক্যান্টিন। নৈহাটিতে 2টো আছে, 600 লোক, আমাদের টার্গেট হচ্ছে 300 থাকে। মা ক্যান্টিন যেটা সরকারি অনুমোদন আসে সেটা 300 থাকে। আমাদের 602টো মা ক্যান্টিন চলে, একটা গরিফা 2 নম্বর ওয়ার্ড, একটা নৈহাটির পৌরসভা। এক্সট্রা সুপার সাহেব সরকারের কাছে আবেদন করে এক্সট্রা এখানে যারা পেশেন্ট আছে, পেশেন্টদের যারা গার্জেন আছে, মানে পেশেন্ট পার্টি যাকে বলা হয়, যারা ধরুন পেশেন্টকে হাসপাতালে রেখে বেডে শুয়ে আছে, বাইরে আছে, তারা হয়তো মানে বাইরে খেতে গেলে 100 টাকা 50 টাকা খরচা, সেই তাদের 5 টাকায় সুষম খাবার বলা যেতে পারে। আজকে যেটা রান্না আছে ফুলকপি আলুর তরকারি, মাছের ঝোল, কাটা মাছের ঝোল, পোনা মাছের ঝোল। এবং আমাদের নৈহাটিতে একটু ব্যতিক্রমী হয়। নৈহাটি ব্যতিক্রমী বলতে নৈহাটি 5 টাকায় ধরুন মুরগির মাংস 2 পিস আলু হয়, ডিম হয়, 2 দিন নিরামিষ হয়।